بات کر رہے ہیں کہ جو الیگل لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں, جو لیگل فریم ورک میں آنا چاہتا ہے, جو ویزا کے ساتھ آنا چاہتا ہے, پاسپورٹ کے ساتھ آنا چاہتا ہے, جو یہاں پر بزنس کرنا چاہتا ہے, اس کے لیے تو انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے, ہم اس کو ویلکم کریں گے. جس طرح ہم کسی اور ملک کے شہری کو بزنس ویزا کے لیے فیسلٹیز دے رہے ہیں, وہ افغان شہریوں کے لیے بھی ہے. بات اتنی ہے کہ جو الیگل یہاں پہ رہ رہے ہیں, جن کا کوئی ٹریول ڈاکومنٹ نہیں ہے, اور پھر کبھی کوئی تذکرہ ہوتا ہے, کبھی کوئی پرمٹ ہوتا ہے کسی پی اے کا, کسی اس کا, اس سلسلے کو ختم کر کے ہم اتنی سی بات کہہ رہے ہیں کہ آپ ویزا لیں جس نے پاکستان میں آنا ہے. دنیا میں کئی ایسے ممالک ہیں جن کی ڈویژن ہوئی ہے, جو ڈیوائیڈڈ ولیجز ہیں, جو اب ہمارے پروونسز میں آپ دیکھ لیں, پنجاب ڈیوائیڈ ہوا ہے, سندھ ڈیوائیڈ ہوا ہے, تو اب ایسی صورت میں کیا وہاں پر ویزا پالیسی ہے یا نہیں ہے؟ تو ہم ویزا پالیسی کر رہے ہیں اور ویزا کے تھرو لوگوں کو انکریج کر رہے ہیں کہ وہ ویزا لے کر آئیں. ہمارے بھائی ہیں, ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, وہ ہمارے مہمان ہوں گے, اور ہماری قوم مہمانوں کی عزت کرنا جانتی ہے. ہم کوئی احسان فراموش تھوڑی ہیں, ہم کوئی مہمان فراموش تھوڑی ہیں, ہم تو بڑے ہماری قوم میں بڑی وہ ہے, ہم تو اپنے محسنوں کو یاد رکھتے ہیں. عثمان مظفر آئی ٹی وی سے. سر جی یہ بتائیے گا کہ شریف فیملی کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ ان کو فیملی تھریٹس ہیں, تو سر اس حوالے سے کوئی تھریٹس ہے شریف فیملی؟ دیکھیے اس وقت تو میں پریس کانفرنس کر رہا ہوں افغان یا ایلیگل جو ریپیٹریشن ہے اس پر, اور اس پر مناسب رہے تو بات کر لیں. اور تھریٹس تو ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو, پولیٹیکل لیڈرز کو, اور وہ تو موجود ہے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے. کیرن بی بی سی سے. Thank you for your good question. We are facilitating them. They are here on a transit base. We are facilitating their exit, and we are in contact with all other embassies here in UK, in Canada, and other countries. And we are facilitating them. We don't harm them. We are not going to harm them. We know where they are staying, and we have all the lists, so we will be facilitating them. I'll check that, and they'll be not detained. I assure you they'll be not detained. We will facilitate them. Mr. Bhatt, Public TV سے. سر تھینک یو. ایک تو آپ نے لاسٹ میں فگرز دیے تھے 4.2 ملین پاکستان میں افغان ہیں. اب تک 70,000 کے قریب جو رضا کرانوں پر جا چکے ہیں, 5 سے 6 دن باقی ہیں. اتنی مشکل ہو رہی ہے, کیا کوئی کیمپینز بھی اسٹارٹ کی گئی ہیں ان کو رضا کرانوں کو بھیجنے کے حوالے سے؟ یہ سر پریس کانفرنس سے پہلی چیز. دوسرا سر دس از ویری سینسٹیو ٹائم کہ نادرا پاسپورٹ آفس امیگریشن حکام کی کولیبریشن ود میڈیا از ویری امپورٹنٹ. وی ڈونٹ ہیو اینی بڈی جس کے ساتھ ہم کنیکٹ کر سکیں, پوچھ سکیں بھائی یہ فیک نیوز ہے نہیں فیک نیوز. بغیر ورژن کے خبر چلتی ہے کہ بعد میں ظاہر ہے دس از نیشنل سیکورٹی. ہم 5 7 10 15 لوگ ہیں کرائم رپورٹرز, کوئی نہیں ہے جو کہ نادرا سے ہم سے بات کر سکے, ایف آئی اے سے بات کر سکے, نہ امیگریشن سے بات کر سکے. انٹیریئر والے بڑے بزی ہیں منسٹر صاحب کے ساتھ. واٹ ٹو ڈو؟ دیکھیے جو آپ کا پہلا سوال ہے, نو ڈاؤٹ ان اٹ کہ یہ ایک چیلنجنگ ٹاسک ہے. بہت بڑی تعداد میں لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں. اب یہ چیلنجنگ ہے, لیکن اسٹیٹ کے لیے وی ہیو دا کیپیسٹی. اسٹیٹ کے لیے کوئی چیلنج نہیں ہوتا ہے, چاہے وہ کسی قسم کا چیلنج ہو. جب ہمارے اندر سینرجی ہے, جب تمام پاکستان کے ادارے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کو ایک سافٹ اسٹیٹ سے ایک ہارڈن اسٹیٹ بنائیں. یہ ایسا دنیا میں کس ملک میں ہوتا ہوگا کہ کوئی ٹریول کرنے کے لیے آتا ہے اور پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے, نہ کوئی ویزا لیتا ہے, نہ کوئی اس کے پاس پاسپورٹ ہے, نہ اس کے پاس کوئی آئی ڈی کارڈ ہے. یہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا. اب آپ دیکھیں یہ جن لوگوں نے کینیڈا جانا ہے, جنہوں نے یو کے جانا ہے, جنہوں نے باقی ملکوں میں جانا ہے, ہاؤ سینسٹیو دے آر. فار لاسٹ 2 years they couldn't manage only 300-400 people to repatriate them to their countries. اور ہمارے لیے کہتے ہیں کہ جی یہ یہاں پر ایسے ہی پھرتے رہیں ہیومیٹیرین گراؤنڈز. یس, ہیومیٹیرین گراؤنڈز پہ ہم ان کو بالکل پرائیورٹی دیں گے, ان کو سب سے لاسٹ میں جو ہے وہ ریپیٹریٹ کریں گے. لیکن جو الیگل رہ رہے ہیں, جو یا کرائم میں شامل ہیں, ہمارا سوشل فیبرک تباہ ہو گیا ہے. ہمارے ایکسپینس پہ ہمارے ہاسپٹلس پہ ان کا علاج ہو رہا ہے, ہمارے ایکسپینس پہ ہمارے پبلک ٹرانسپورٹ وہ یوز کر رہے ہیں, ٹیکس نیٹ میں وہ نہیں ہے. تو یہ کسی بھی ملک کا یہ بنیادی حق ہے کہ وہ اپنے ملک کو ایک سافٹ اسٹیٹ سے ایک ہارڈن اسٹیٹ بنائے. کیسر بٹ صاحب سینئر جرنلسٹ. جنیوا میں یو این ایچ سی آر کی کانفرنس ہوئی اور امریکن نے بھی کہا ہے کہ ان کو نہ نکالیں جو آپ کے خیال میں لیگل ہے, اور یو این ایچ سی آر بھی کہہ رہی ہے تو 50 سال سے تو یہاں رہ رہے ہیں جو لیگل ہیں, سو کالڈ لیگل, تو یہ کیا ہمیشہ زندگی بھر نہیں رہیں
सो को देखिए बट साहब इलीगल तो आप निकाल रहे हैं, इनको कब निकालेंगे? जी, पहले फेज में इलीगल को निकालेंगे, दिस इज पार्ट ऑफ द प्लान। मैं माफ चाहता हूं, जी ये जो लीगल हैं सो कॉल्ड, इन्होंने भी शनाख्ती कार्ड लिए हुए हैं, इन्होंने भी पासपोर्ट मैंने बट साहब मैंने पासपोर्ट वहाँ पर जी बट साहब मैंने अपने इंट्रो में ये कहा है कि जब ये पासपोर्ट्स पकड़े गए हैं तो हम इनको जो लीगल रह रहे हैं इसको हम इलीगल कह रहे हैं। एक दो किस्म के इलीगल है, आप समझें। एक वो इलीगल है जिसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, एक वो भी इलीगल है जिसने हमारे सिस्टम को ब्रीच किया है और अपने लिए नादरा में स्पेस बनाई है, चाहे वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से बनाई है, चाहे वो रिश्वत दे के बनाई है, या जिस तरह भी किया है, उसका भी स्टेटस इलीगल है। और ये जो UNHCR के साथ लिस्टेड हैं 2015-16 में, आपको याद होगा कि एक प्लान बना था कि वो वॉलंटरी रिटर्न था, उनको कुछ डॉलर्स दिए गए थे। तो हम UNHCR से कह रहे हैं कि अब अफगानिस्तान के हालात ठीक है, तो अब आप वो अपने मुल्क में वापस जाएं। सेकंड फेज में बिल्कुल किसी किस्म का भी हम अपने मुल्क में फेज वाइज ज़रूर है। द टाइम विल कम, हम होंगे या नहीं होंगे, लेकिन द टाइम विल कम कि इस मुल्क में एक भी इलीगल फॉरेनर जो है वो यहाँ नहीं रह रहा होगा। पासपोर्ट लेकर आएँ, वीज़ा लेकर आएँ, बिजनेस करना चाहें, इन्वेस्ट करना चाहें, सैर करना चाहें, फैमिली से मिलना चाहें, हम उनको वेलकम करेंगे। हमारे भाई हैं, हमारे मेहमान हैं, हमारे दोस्त होंगे, लेकिन इलीगल किसी को इस मुल्क में अब छोड़ा नहीं जाएगा। सर अभी आपने बात की कि नाजरा ने शनाख्ती कार्ड बना के दिए हैं काफी तो इसमें काफी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने पासपोर्ट बनवाए और वो बाहर मुल्क भी चले गए, तो उस हवाले से क्या इकदाम करेंगे, क्या वो पाकिस्तानी पासपोर्ट पर ही रहेंगे? दूसरा ये कि ये जो लोग जा रहे हैं ये ऐसा मुमकिन तो नहीं है कि कहीं जाते हुए डॉलर भी लेकर जा रहे हो, जिस तरह पहले भी डॉलर की स्मगलिंग हो रही है, तो इसमें नामुमकिन है, नामुमकिन है कि कोई डॉलर यहाँ से लेके जाए। किसी किस्म की स्मगलिंग की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मैंने आपको बताया कि अफ़गान करेंसी में उनको 50,000 रुपये लेके जाने की इजाज़त है। इसी तरह कोई ईरान से आया हुआ है, उसने जाना है तो वो ईरानियन करेंसी में लेके जा सकता है। इसी तरह वो किसी और मुल्क से आया। बदकिस्मती ये है कि लोग इस परसेप्शन को एथनिक लेके जा रहे हैं और एक पर्टिकुलर मुल्क जिस अफ़गानिस्तान की तरफ लेकर। अब मेरी बदकिस्मती है कि सबसे ज़्यादा इलीगल फॉरेनर्स जो है वो हैं अफ़गानिस्तान के, तो अब मैं ब्राज़ील का नाम तो नहीं ले सकता, अब उनको ब्राज़ील तो नहीं भेज सकता। ज़ाहिर है अफ़गानिस्तान के तो अफ़गानिस्तान ही भेजा जाएगा ना, तो अफ़गान करेंसी पे लेके जाएंगे और किसी डॉलर की सूरत में या किसी भी सूरत में उनको नहीं इजाज़त दी जाएगी। देखिए, हम उनके पासपोर्ट कैंसिल करेंगे, हम दुनिया में जहाँ होंगे हम वहाँ उन ममालिक को लिखेंगे कि ये हमारे सिटीजन्स नहीं हैं, ये इलीगल इन्होंने पासपोर्ट को अप्रोच किया है। और हमारी देखिए गलती तो हमारी है, हमारी सिक्योरिटी देखें, ये जो नादरा है ये क्यों एक नेशनल सिक्योरिटी का इदारा बन गया है। इसी वजह से हम कहते हैं कि एक नेशनल सिक्योरिटी का इदारा है। इसी वजह से वहाँ पर एक हाजिर सर्विस जनरल साहब को लगाया गया है ताकि वो जो सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है, नेशनल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है, उसको और टेक्नोलॉजी दोनों को क्लब करके एक नादरा को एक बेहतर इदारा बनाया जाए ताकि आइंदा इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ना हो सकें। APP से जी, अब उसमें यह है कि हमने इंटीरियर में एक सेल बनाया है, वो मेरा ख्याल है आजकल में हम उसको 1 नवंबर तक अनाउंस कर देंगे। हॉटलाइन बनाया है, उसमें कोई भी शिकायत लेकर आए। देखें, जब इतने बड़े पैमाने पर होंगे तो ज़ाहिर है थोड़ी बहुत तो वो होगी, लेकिन हमारे बड़ी क्लियर कट डायरेक्शंस हैं तमाम फोर्सेस को, किसी किस्म की कोई मैन हैंडलिंग नहीं होगी। स्पेशली जो एल्डरली लोग हैं, स्पेशली जो बच्चे हैं, स्पेशली जो ख़वातीन हैं, बड़े एहतराम के साथ उनको ट्रीट किया जाएगा, लेकिन बड़े फर्म अंदाज में। ये नहीं हो सकता है कि किसी भी गाँव में कि मैं लीगल हूँ, लीगल के साथ एक इलीगल ट्रैवल कर रहा है, तो ज़ाहिर है हमें चेक तो करना पड़ेगा। अब उसके लिए यही हो सकता है कि वॉलंटरी रिटर्न को हम क्यों इनकरेज करें कि उसमें यह होगा कि हमें वो मैन हैंडल होने से बच जाएंगे, वो गिरफ्तारियों से बच जाएंगे, वो पकड़े जाने से बच जाएंगे। जब एक बंदा छुप रहा होगा किसी भी मुल्क में, छोड़े पाकिस्तान को, किसी भी मुल्क में कोई एक बंदा छुप रहा होगा, वो इलीगल होगा, तो क्या उधर की फोर्सेस उधर छापे नहीं मारेंगी? क्या उधर की फोर्सेस वहां पे जाके उनको पकड़ेंगी नहीं? तो जब पकड़ेंगी तो फिर हम ये काम क्यों ना करें? जमान मुगल साहब, 1 मिनट। जमान मुगल साहब ये बताइएगा कि हम सरकार की तरफ से ये कहते हैं कि जी इतने अफगानी हैं, उन्होंने इलीगल जो है वो डॉक्यूमेंट्स ले लिए हैं, 12,000 पासपोर्ट पकड़े गए हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हम कहते हैं। तो इसमें जो लोग मुलव्वस हैं, अमली तौर पर कितने ऐसे लोग हैं जिनको सजाएं हुई है, या जस्ट इसी तरह है कि जस्ट एक प्रेस रिलीज
आ गई और पता चला जी 2 पकड़ लिए हैं, 3 पकड़ लिए हैं, बस खाना पड़ेगा? देखिए, मामला इतना है कि ये जो मामलात होते हैं हमारे सिस्टम्स इस तरह के हैं, ये इतना आसान नहीं है, लेकिन विद इन नादरा मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जब तमाम इदारों में अपने तरीके से वो कर रहे होते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि वो प्रेस पे आए, लेकिन ये ज़रूर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम अपनी जगह पर मौजूद है। देखिए, जो आपकी तजावीज़ हैं उनको वेल नोटेड, और जो आपका सवाल है, जो फैमिलीज़ है, हमारा लॉ ये कहता है कि अगर हमारी पाकिस्तानी खातून किसी गैर मुल्की शहरी से शादी करती है तो वो उस गैर मुल्की शहरी को नेशनलिटी नहीं मिलती है, लेकिन इन द अदर केस अगर कोई पाकिस्तानी किसी और मुल्क की खातून से शादी करता है तो उसको नेशनलिटी मिल जाती है उस खातून को। तो इट इज़ क्वाइट सिंपल। लास्ट सवाल जी, लास्ट सवाल। वो मैंने आपको पहले कहा कि कोई किसी को उनको गैर कानूनी अफ़गानिस्तान के रहने वाले लोगों या किसी भी मुल्क में, बार बार आप इसको अफ़गानिस्तान से रिलेट कर देते हैं, किसी एक स्पेसिफिक मुल्क के लिए नहीं है। कोई भी किसी गैर मुल्की को, इलीगल गैर मुल्की को किराए पे घर देगा, वो फैसिलिटेशन में आ रहा है, और फ़ॉरेन एक्ट जो हमारा है वो उस पर FIA का जो है वो इम्प्लीमेंट होगा और वो सफ़र करेगा। तो मैं पाकिस्तानियों को आपके तौसीत से बार बार ये कह रहा हूँ कि प्लीज़ आप लोग आके बताएं, और हम वो जो हॉटलाइन बना रहे हैं उसमें इंफॉर्मेशन सेंटर बना रहे हैं कि लोग हमें इन्फॉर्म करेंगे कि मेरे हमसाए में इतने अफ़गानी, तो आपने नज़र आ जाना है, स्टेट से कोई चीज़ छुपी नहीं होनी है। तो बजाय इसके कि आप उस वक्त सफ़र करें, तो उससे बेहतर है कि आज उस पर अमल कराएं और अपने उन मेहमानों को कहें कि वो अपने अपने मुल्कों में वापस चले जाएं। शुक्रिया। सवाल शरीफ साहब, हम न्यूज़ से बस 90 दिन के बाद वो फिर इसको वापस कर रिवर्स कर लें। क्या मसला, मैं गलत काम होने देता हूँ। थैंक यू सर।